lesson number 18 of English Bal Bharati textbook of your 5th standard, and the lesson number 18, that is weeds in the garden. Very interesting lesson which I like the most, and you should also learn a lesson from it. Okay, shall we start now? So this is a story of a boy whose name is Anshuman, and how his father helped him to get rid of the bad habits. He shows him in a very good, giving a very good example. So let us see how his father helped him to get out of the bad habits, get rid of the bad habits which he is inculcating. That is Anshuman. Okay. So shall we start the story? Shall we start the lesson? Okay, fine. Most of the parents like to fulfill the wishes of their children, right? They feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them, right? And when even a scolding has no effect, the parents become very unhappy. Such was the case with Anshuman and his parents. Your parents might be informing you from time to time, sit properly, like they must be giving you instructions every now and then from your childhood itself, that you should write in a good handwriting. There are so many instructions your mama and papa gives you. Why? Because they want you to inculcate in you good habits, right from the beginning, right from the childhood, so that your handwriting should improve, and you will be able to write in a good handwriting. They ask you to speak while you write. Okay, that are some of the get up early in the morning, finish the tiffin in time, and so on. There are so many instructions your mama and papa gives you, and because of that today you are such a disciplined pupil, right? So let us go ahead. Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. Time and again means every now and then, right? Now, Anshuman just wouldn't listen. Anshuman was not listening to their instructions at all. He refused to believe that it was letting those bad habits get a hold over them. क्या होता है, आप वो बैड हैबिट से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो क्या होगा, वो आप में जड़ों तक घुस जाएंगे, और फिर उनसे बाहर आना आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी. इसीलिए आपको शुरू से ही बैड हैबिट्स नहीं लगाने अपने आप को, है ना. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. Gentle words, strict warnings, है ना. शुरू में मम्मी भी आपको जेंटल वर्ड्स में दें, बेटा ऐसे मत करो, ठीक से बैठो, 2-4 बार अच्छे से बताइए, नहीं तो क्या करेगी, सीधा एक बजा के देती है ना मम्मी और पापा है. वाई? बिकॉज उनको आपकी बहुत फिक्र है ना. स्ट्रिक्ट वार्निंग. बाद में आपको मम्मी क्या बोलेगी, अभी ये लास्ट टाइम बोल रही हूँ, वापस से दिखेगा ना तो मैं सीधा पीटूंगी, पापा को बता दूंगी. बोलती है ना मम्मी ऐसे. क्यों? क्योंकि आपको अच्छी आदत पड़ जाए. अ स्कोल्डिंग नाउ एंड देन, एंड हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग शॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम अप. इवन उसको मारा भी है क्योंकि वो नहीं सुधर रहा है ना. एंड दैट दे वुड नेवर डू. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct the son's ways, है ना. बच्चे को, अंशुमन को करेक्ट करते करते वो उनको मारना उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको अपना बच्चा अच्छे से सुधर जाए, प्यार से बोल के सुधर जाए, यही वो चाहते थे. Soon an opportunity presented itself. अपने आप एक मौका भी उनके सामने आया. कैसे आया? अंशुमन had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. पेरेंट्स के साथ अंशुमन कहाँ गया था? दादाजी के फार्म हाउस पे गया था, है ना. अर्ली वन मॉर्निंग his father took him for a walk around the farm. फार्म के यहाँ पे उसको घुमाने के लिए लेके गए. He was describing the specialities of various plants and vines and bushes and trees to Anshuman. अभी मैं आपको ये बोलने की जरूरत है, प्लांट्स दैट यू नो. वाइन्स में मतलब क्या, ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ना,
वाईन मतलब मराठीत वेल म्हणतात त्याला. हां, सो वाईन्स अँड बुशेस. हां, रोज का क्या होता है, बुश होता है, छोटा प्लांट, राइट. And trees you know, trees to Anshuman. Suddenly he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. सडनली पापा एक जगह पे रुक गए. कहाँ पे रुक गए? एक छोटा सा सीडलिंग ग्रो हुआ था. कहाँ पे? प्लांट के बाजू में. अभी अंशुमन को वो क्या बोलते हैं? अंशुमन, दैट इज अ वीड. वो वीड है. कैन यू पुल इट आउट? तुम उसको खींच के बाहर निकाल सकते हो? अंशुमन हैड नो डिफिकल्टी इन पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडलिंग्स आउट. अंशुमन ने बहुत अच्छी तरह से इजीली खींच के निकाला. उसमें क्या है? गुड, said his father. उसके पापा बोले अच्छी बात है, वाओ. एंड दे कंटिन्यूड विद देयर वॉक. और वो चले गए, आगे आगे चलना कंटिन्यू किया उन्होंने. आफ्टर अ व्हाइल, थोड़े समय के बाद क्या हुआ? दे केम अपॉन द सेम वीड बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर. उसी टाइप का, उसी प्रकार का वीड था. आगे उनको वापस नज़र आया, लेकिन ये वाला जो था तो वो थोड़ा और बढ़ चुका था, थोड़ा बड़ा था उस पहले से. अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू. अंशुमन के पापा ने ये प्लांट को भी अंशुमन को खींच के निकालने के लिए बोला. ही टोल्ड हिम टू अपरूट द वीड केयरफुली. अपरूट मतलब क्या? जड़ों से उखाड़ना. केयरफुली जड़ों से तो उसे उखाड़ दो. मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वॉज लेफ्ट इन द सॉइल. उसको पापा ने क्या बोला? ऐसे इस तरह से निकालो कि उसमें से एक भी रूट उसका मूल ज़मीन में ना रह जाए. इस तरह से आप खींच के निकालो, ऐसे अंशुमन को बोला. अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन. ही वॉर्न. उन्होंने क्या बताया? ये वीड वापस ग्रो हो जाएगा. एक भी रूट उसके अंदर रह गया तो ज़मीन के अंदर, है ना. अंशुमन अप्रूटेड द प्लांट केयरफुली, ट्विस्टिंग इट. उसको थोड़ा घुमाया एंड पुलिंग इट. ऐसे से घुमाया, फिर खींच के निकाल. पुलिंग इट हार्ड सो दैट द होल ऑफ इट केम आउट. पूरा का पूरा बाहर आया. देन हिज फादर ड्रू हिज अटेंशन टू द सेम वीड ग्रोइंग एट सम डिस्टेंस. अभी थोड़े और चल के जाने के बाद उनको सेम वैसा ही वीड नज़र आया. वहाँ पे पापा ने पॉइंट आउट किया. देयर इट हैड ग्रोन इनटू अ बिग प्लांट विथ टाइनी फ्लावर्स एंड डार्क फ्रूट. अभी ये जो वाला वीड था वो क्या था? यू नो, वीड मीन्स मतलब क्या? दैट इज़ ऑफ नो यूज़. उसका कुछ यूज़ नहीं होता है. ऐसा वीड उखाड़ के फेंकना ही है आपको, राइट. हाँ, तो दैट इज़ द वीड. अभी ये जो वाला था वो कैसे था? विथ उसके ऊपर टाइनी एक बड़ा प्लांट में ग्रो हो चुका था. दिस इज नो मोर अ स्मॉल प्लांट बट इट हैज ग्रोन इनटू अ बिग प्लांट एंड इट विच इज बेयरिंग डार्क फ्रूट ऑल्सो एंड टाइनी फ्लावर्स ऑल्सो. नाउ व्हाट अंशुमन्स फादर सेज नाउ? दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस. ये डेंजरस है. दिस कुड बी अ डेंजरस. we mustn't leave we must not leave it growing there. हमें यहाँ पे इसको ग्रो करते हुए छोड़ना नहीं, इसको उखाड़ देना ही पड़ेगा. टेक इट आउट. निकालो उसको, खींच के निकालो. said Anshuman's father. Anshuman held the plant in his hands and gave it a tug. उसको घुमाया. अंशुमन ने पकड़ा और घुमाया. You can see here Anshuman. I will show you a picture. Anshuman's trying to pull out the plant which has now grown quite bigger. Okay, now what happens? Is he able to succeed in this task? Let us see in the story. Okay, Anshuman held the plant in his hands and gave it a tug. The weed didn't move at all. He pulled harder and harder but to no avail. No avail means no use. उसने पुल जोर से पुल करने की, खींचने की कोशिश की, लेकिन वो प्लांट कुछ ज़मीन से बाहर आया ही नहीं. आई कांट गेट दिस आउट एक्सक्लेम अंशुमन. अंशुमन बोला मैं इसको खींच के नहीं निकाल सक रहा हूँ. इट हैज़ गॉन टू डीप इन टू द सॉइल. वॉट अंशुमन सेज. देखो ये प्लांट तो पूरा ज़मीन के अंदर, बहुत अंदर गया है. उसके रूट्स बहुत अंदर तक ग्रो हो चुके. Soon then his father brought some implements. उसी वक्त पापा ने कुछ implements लेके आए हैं ना, औजार. वो कुदाल वगैरह होता है ना, वो सब लेके आए. They dug around the weed. दोनों ने क्या किया? वीड के आजू बाजू में जो मिट्टी थी उसे उधर खुदाई करनी चालू की. एंड विथ ग्रेट एफर्ट पुल्ड इट आउट. बहुत एफर्ट लगा के वो प्लांट को खींच निकाला.
when they were returning home after the hard work, ये hard work सब करने के बाद घर पे आ रहे थे, अंशुमन्स father mentioned, क्या mention किया? Habits are like weeds. अपनी आदतें कैसी होती है? Weeds की तरह होती है. The longer you allow them to grow, right? The harder it is to uproot them. ज़्यादा आप उसको grow करने को देंगे तो क्या होगा? उसको खींच के उखाड़ के फेंक देना बहुत मुश्किल है. It is wise to get rid of them when it is easy to do so. जब उनको उखाड़ के फेंकना बहुत आसान होता है तभी आपको उखाड़ के फेंकना है ना. अदरवाइज टू गेट रीड ऑफ मतलब उससे छुटकारा पाने, मुक्तता पाने, नहीं तो वो आपके अंदर इतनी घुस जाएगी कि आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते है ना. अंशुमन रियलाइज द ट्रुथ इन हिज फादर्स वर्ड्स. अंशुमन को पापा के शब्दों का एहसास हो गया. पापा क्या कह रहे थे इतने दिन, मम्मी क्या कह रही थी. Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. जिंदगी भर वो ये अपने पापा के साथ घूमने गया तो पापा ने जो क्या एक्टिविटी में से बताया, उसको गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स से कैसे छुटकारा पाना है वो सब बताया. तो उसको ये सुबह वाली जो मॉर्निंग की वॉक थी वो हमेशा याद रह गई है ना. तो बच्चों आपको भी क्या करना है, बुरी आदतों से आपको छुटकारा जल्द ही जल्द पाना है. जब वो कम है आदतें, आप आदत के आदी होने से पहले ही, बुरी आदत के आदी होने से पहले ही उससे आपको छुटकारा पाना है. उसके लिए एफर्ट्स करने हैं. अगर आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है या आपने तय किया कि डेली में 2 घंटा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आपको पढ़ना ही है. आप शुरू बचपन से ही आदत डालो तो ही आपको आदत पड़ जाएगी. बाय हार्ट करना है, लिखना है, सम सॉल्व करने हैं, वो आप डेली करो तो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी है ना. एग्ज़ाम के 15 दिन स्टार्ट करोगे पढ़ाई के लिए तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू to cover the study. But you study daily for 1 hour or half an hour, then it will surely help you in the to succeed in the exams, right? So this is a very nice story, Weeds in the Garden, which now we have studied. Okay, thank you very much. Bye bye, take care.